મેઘ નિર્ઘોષ દ્વારા પ્રકાશિત ડોક્ટર એ સૂર્યપ્રકાશના પુસ્તક વિમોચન પ્રસંગે કટોકટી દરમિયાન પકડાયેલા મીસાવાસીઓનું સન્માન કરવામાં આવ્યું હતું. ત્યારબાદ વિવિધ વક્તાઓએ પ્રાસંગિક ઉદ્બોધન કર્યું હતું અને કટોકટીના દુઃખદ સંસ્મરણોને વાગોળ્યા હતા. પ્રસ્તુત છે તેના સંકલિત અંશો. જેમને આપણે ઇતિહાસમાં ફક્ત વાંચ્યા જ છે એવા લોકો આજે આપણી રૂબરૂ છે. એવા જ એક ડૉક્ટર સુબ્રમણ્યમ સ્વામી કે જે પાર્લામેન્ટમાંથી સીધા અમેરિકા પહોંચી ગયા હતા. તો કેવી રીતે આખી ઘટના બની હતી એમને પોતાના શબ્દની અંદર આજે વર્ણન કરી છે. પરંતુ આ ઘટનાને આપણે બહુ એકદમ લાઇટલી લીધી છે કે આવ્યા પાર્લામેન્ટમાં ને જતા રહ્યા, પહોંચી ગયા વિદેશની અંદર. પણ ઐતિહાસિક દ્રષ્ટિકોણથી જો આને જોઈએ તો છત્રપતિ શિવાજી મહારાજ ઔરંગઝેબના આગ્રાના કિલ્લામાંથી જે પ્રકારે ગુપ્ત રીતે નીકળી ગયા હતા એ જ પ્રકારની આ ઘટનાને આપણે મૂલવવી જોઈએ. સ્વાતંત્ર્યવીર સાવરકરની લંડનમાં ધરપકડ થઈ હતી. જહાજમાંથી એમને લાવતા હતા ભારત, તો એક સંડાસના પોખરાના પાઇપમાંથી સરકી અને દરિયાની અંદર છલાંગ મારીને ફ્રાન્સ પહોંચ્યા હતા છેટ. તો આ ઘટનાનું ઐતિહાસિક રીતે આ રીતે આપણે મહત્વ આપવું જોઈએ. અને સુભાષચંદ્ર બોઝ ગુપ્ત વેશની અંદર અંગ્રેજોના છટકામાંથી છટકી અને વિદેશ જઈને આઝાદ હિન્દ ફૌજની સ્થાપના કરી હતી. તો આ સુબ્રમણ્યમ સ્વામી જે એકદમ આપણને વાત કરી છે કે પાર્લામેન્ટમાંથી હું અમેરિકા ગયો કેવી રીતે, આ ત્રણ સ્થળો એટલે શિવાજી, સાવરકર, સુભાષ અને સ્વામી ઐતિહાસિક રીતે જોઈએ તો પણ આ એક મેળ બની જાય છે. એવી રીતે ડૉક્ટર સૂર્યપ્રકાશ પ્રસાર ભારતીના ચેરમેન છે. એ વખતે જ્યારે એમને કહ્યું કે બેંગ્લોરની અંદર ઇન્ડિયન એક્સપ્રેસના એડિટર હતા, એટલું સરકાર વિરુદ્ધ ઇન્દિરા ગાંધી વિરુદ્ધ લખ્યું હતું કે જો ઇન્દિરા ગાંધી ચૂંટણી જીત્યા હોત તો સૂર્યપ્રકાશજી આપણી સામે હોત કે નહીં, એ પ્રશ્ન હતો એ જમાનામાં. કે બેન એમને છોડવાના જ નહોતા. પરંતુ વિધિ પણ અલગ રીતે કંઈ ને કંઈ દરેક વ્યક્તિ માટે કામ નિમિત્ત બનાવતી હોય છે. તો સૂર્યપ્રકાશજી માટે એ વખતે આ જે લોકો છે ઐતિહાસિક હીરો જે છે શિવાજી, સુભાષ, સાવરકરની તુલનાથી કોઈ ઓછા નથી. આજે બેઠેલા લોકો છે એ પણ આપણા માટે પૂજનીય અને વંદનીય છે. આજે જે આપણે કહીએ છીએ કે રાઇટ ઓફ સ્પીચ અમારો બંધારણીય અધિકાર છે, આજે આપણો બંધારણીય અધિકાર સોશિયલ મીડિયામાં કંઈ પણ લખી નાખીએ છીએ, કોઈ પણ માટે લખી નાખીએ, છતાં એમ કહીએ છીએ કે અમારો બંધારણીય અધિકાર છે. આ બંધારણીય અધિકાર આપણને નવી પેઢીને જો કોઈ મળ્યો હોય તો આ લોકોએ જે પરિશ્રમ 19 મહિનાની યાતના સહન કરીને 1,19,000 લોકો જેલમાં રહ્યા, ત્યારે આ આપણને રાઇટ ઓફ સ્પીચ, રાઇટ ઓફ થોટ, આ જે બંધારણીય અધિકાર આપણને મળ્યા છે એના માટે આ લોકોનો જેટલો આભાર માનીએ એટલો ઓછો છે. તો ત્રણેય વક્તાઓ રૂપાલા સાહેબ, સુબ્રમણ્યમ સ્વામી, ડૉક્ટર સૂર્યપ્રકાશ, મીસાવાસીઓએ આવીને જે કંઈ અમારું સન્માન સ્વીકાર્યું છે મેઘ નિર્ઘોષ સંસ્થા તરફથી, અને આ કાર્યક્રમની અંદર નવી પેઢીના પણ એકદમ સારી સંખ્યામાં યુવાનો જોડાયા છે. અને અલગ અલગ પ્રકારે જે લોકોએ અમને મદદ કરી છે, તો ઓપનિંગ સેશનની અંદર હું આ બધા જ લોકોનું, હીરોનું પણ ખૂબ સ્વાગત કરું છું. અને હીરોની પ્રેરણા લઈને ભવિષ્યમાં પણ જો કાંઈ આવું સંકટ ભારત ઉપર આવે તો એ સંકટને નિવારવા માટે જે યુવા પેઢી આવી છે આ સેમિનાર સાંભળવા માટે, એમનો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું. ધન્યવાદ. ભારત માતા કી જય. इतिहास को लिखने वाले लोग, और आज सूर्य प्रकाश जी का जो किताब का विमोचन होने वाला है वो भी इतिहास को ही वो लिखा गया है. वो इतिहास को आज के दिन तक वो ला रहे हैं ताकि भारत की इतिहास पूरी तरह से लोगों के सामने आए. क्या होता है, इतिहास लिखने वाले हमेशा यही कहा जाता है कि जीतने वाले इतिहास लिखते हैं,
तो हम जीते हुए लोग हैं लोकतंत्र के लिए, इंदिरा गांधी के खिलाफ, कांग्रेस के तानाशाही के खिलाफ। इसलिए सूर्य प्रकाश जी जीता हुआ व्यक्ति का एक इतिहास लिखा गया है। हम लोगों को हमेशा इस लड़ाई को जीतने के लिए हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि हम ही लोग इतिहास भी लिखने वाले हैं। और जैसे जीते हुए लोग इतिहास लिखते हैं, हारे हुए लोगों को कम मौका मिलता है, चुप रह जाते हैं और दूसरे कभी सदी में वो कुछ अपनी बातें लिखते हैं। इतिहास को पूरी तरह से देखना है, अच्छा भी क्या हुआ, बुरा भी क्या हुआ। इतिहास को अगर हम पहचानेंगे नहीं, गलतियों को भी नहीं पहचानेंगे, तो हम वो गलती दोबारा भी कर सकते हैं। कुछ ऐसे देश हैं जिन्होंने अपने इतिहास को समझ के अपने गलतियों के लिए माफ़ी मांगा है। साउथ अफ्रीका ने, जो गोरे लोगों ने अपने रंगीन लोगों को, जिसको कहते हैं, उनके ऊपर जो हमला किया, दबा के रखा, वंचित कर दिया था, उनके जब नेल्सन मंडेला आए, उन्होंने एक पीस एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन खड़ा किया, जिससे कि इन दोनों तबकों को साथ फिर से बिठाया जाए, गलतियां माने जिन्होंने गलती की, और जिन्हों के ऊपर गलती हुआ वो माफ़ भी कर लें। माफ़ी मांगना और माफ़ी देना ये भी ज़रूरी है लोकतंत्र में। अगर हम कभी अपने गलती को नहीं मानेंगे तो वो तानाशाही उनके दिल में है। गुजरात में आप इतने लोग हैं, पूरे देश में हैं, लेकिन गुजरात की बात बार बार आई, और इस कार्यक्रम को गुजरात में होना मुझे बहुत ही, मैं प्रसन्न होती हूँ, क्योंकि गुजरात एक ऐसी जगह थी जहाँ सिर्फ, जैसे डॉक्टर स्वामी ने कहा, एक विश्राम की जगह नहीं थी, एक सुरक्षा की जगह थी। अहिंसा सिखाने वाले सब यहीं से पैदा हुए। महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जितने भी लोग यहीं से या तो पैदा हुए, या फिर नरेंद्र मोदी जी जो यहाँ भी भूमिगत होके अलग अलग वेश पहन के घूमते थे, जॉर्ज फर्नांडिस, कर्पूरी ठाकुर, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी, सब भूमिगत, मगर भूमिगत होकर अपनी आवाज़ को उठाने का तौर तरीका। तो उनके पास हिम्मत, बुद्धि और कलम, सब लोग लिखते थे। जॉर्ज साहब का मुझे याद है, वो बार बार पत्र लिखते थे अंडरग्राउंड से, मैडम डिक्टेटर, इंदिरा गांधी को ऐसे एड्रेस करके लिखते थे, मैडम डिक्टेटर, डू यू नो दिस, डू यू नो दैट। एक दिन वो इतनी चिढ़ गई, उन्होंने कहा, यस, इफ दिस इज डिक्टेटरशिप, यस, आई एम अ डिक्टेटर। मान भी गई बड़ी खुशी से। तो उन दिनों में चैलेंज करने के लिए रात रात को पत्र किसी के हाथ दे के, किसी के हाथ दे के, अलग अलग वेश पहन के, कोई गाड़ी में किसी चीज़ को छुपा के ले जाके किसी और शहर से, किसी और राज्य से उसको डाकघर में डाल दिया और वैसे पत्र भेजते थे। जब पकड़ा गए तब इसलिए पकड़ा गए कि यहाँ प्रचार चल गया कि यहाँ के चीफ मिनिस्टर इमरजेंसी के खिलाफ लड़ने वाले लोगों का मदद कर रहे हैं। और तब कुछ लोगों ने ये भी प्रचार किया कि हाँ, वो गलत काम कर ही रहे थे जॉर्ज फर्नांडिस, लेकिन हमने उनको बोला कि ऐसे मत करो, अपनी भाषा बदल दी। तो ऐसे लोगों को लाया, चीफ मिनिस्टर को हटाया, और जो सबवर्सिव बोल रहे थे, लोकतंत्र के लिए देश को बचा रहे हैं बोलने वाले प्रधानमंत्री, उन्होंने जितने भी लोकतांत्रिक रूप से चुना गया सरकारों को भंग कर दिया। तो सरकार भी गए, कई सरकार जो जनता की मर्जी से चुनकर आए, सब खत्म। तो ये है तानाशाही, ये है इमरजेंसी, और ये है हमारे इतिहास। इस इतिहास को, जैसे मैंने शुरू में कहा, लिखना भी ज़रूरी है, याद रखना भी ज़रूरी है, और बार बार नए पीढ़ियों को सिखाना भी ज़रूरी है, बताना भी ज़रूरी है। लोगों को ये पता नहीं है,
इमरजेंसी कब लगी, कितने लोग जेल गए, इमरजेंसी लगने का कारण क्या है, ये बहुत गंभीर बात है। अब इतिहास के दृष्टि से जब हम इमरजेंसी को देखें तो मुझे कुछ शब्दों का खेल जब समझ में आता है, ये अनुशासन पर्व है। अनुशासन पर्व है तो प्रश्न यह उठता है कि क्या ये देश अनुशासित नहीं था? क्या किसी को अनुशासित करने के लिए आप उसका ईश्वर का दिया हुआ जीवन भी छीनने के लिए तैयार हैं? क्या ईश्वर के दिए गए जीवन को हमको अनुशासित करने के लिए हमारी खोपड़ी पे आप बंदूक लगाएंगे और आप डिफाइन करेंगे कि मैं अनुशासित हूं कि नहीं हूं? प्रश्न उठता है। ये बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है, इसको बहुत आसानी से नहीं टाला जाना चाहिए। इस पे बहुत बहस होनी चाहिए थी, पहले भी आज भी। और मैं इस बात को मानता हूं, जैसा अभी जया जी भी कह रही थी और लोगों ने भी कहा, अरे गाड़ियां टाइम से चलाने के लिए इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं है। लोगों को उनको जिम्मेदारियों का एहसास दिलाया जाना चाहिए। सबसे ज्यादा घृणित बात तो ये भी हुई, अच्छी भी है बुरी भी है, कि 2 जजेस जस्टिस पीएन भगवती, जिनकी अभी हाल में डेथ हुई है, और जस्टिस वाई चंद्रचूड़ ने रिकॉर्ड इंटरव्यू में कहा कि हम सब लोग डरे हुए थे, वो फैसला गलत था। वो फैसला गलत था आप 1989 में आके कहें, लेकिन बंधुअर प्रश्न ये उठता है कि 1975 से 1989 के बीच में जिनके परिवार गायब हो गए, जो मार डाले गए, उनकी जवाबदेही किसकी बनती है? आपने तो बहुत बड़े टावर पे बैठ के जजमेंट दे दिया 17 सालों बाद या 15 सालों बाद, 14 सालों बाद, हाँ वो फैसला गलत था। भारत अकेला ऐसा देश है जहां किसी भी संवैधानिक पद के लिए जब आप शपथ लेते हैं तो जरूरी नहीं कि आप कुरान और गीता या रामायण पे लगकर ही शपथ लें। आप ईश्वर के नाम पे शपथ ले सकते हैं, आप संविधान के नाम पर शपथ ले सकते हैं, आप निष्ठा के नाम पर शपथ ले सकते हैं। दुनिया में, विश्वास कीजिए, दुनिया में किसी देश में ऐसा नहीं है। या आप धार्मिक पुस्तक पर रखकर नाम लेते हैं, या गॉड कहते हैं, या अल्लाह के नाम पे लेते हैं। इस चरित्र को बनाए रखिएगा। हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, सर्वधर्म संभाव, एकम सत विप्रा बहुधा वदंत, उसने हमें बचाए रखा है। हमें बहुत गर्व होना चाहिए कि हम इस विरासत के लोग हैं। हमें कभी शर्म नहीं होनी चाहिए कि हम हिंदू हैं। हिंदू बाय नेचर इज सेकुलर। सेकुलरिज्म शब्द से मुझे घृणा है। घृणा इसलिए है कि वो सर्वधर्म संभाव हमारी आदत है, हमारे जीवन का हिस्सा है, वो हमारे लिए शब्द नहीं है। लिहाजा मैं इतनी ही बात कहूंगा इतिहास से करते हुए, कृपा करके इस धरोहर को बनाए रखिएगा। जिस दिन आप इस धरोहर से हाथ छोड़ेंगे, इस धरोहर को जाने में, इस आइडेंटिटी को जाने में देर नहीं लगेगी। इसी के साथ, इस प्रार्थना के साथ कि हमेशा इस धरोहर पे गर्व रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। पैरेलल 12 जून को इलाहाबाद की हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी के विरुद्ध में जो जजमेंट दिया, उनको रिजाइन करने की नौबत आ गई। यहाँ गुजरात में मोर्चा सरकार बनी लगभग 14 को और बाद में 20 जून को, और 25 जून को इंदिरा जी ने रात को इमरजेंसी लगा दी। 26 जून को जब हम सो करके उठे थे, हम मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में थे, मैं फर्स्ट MBBS में था, तो उस समय सुबह में जो संदेश दैनिक आया था, संदेश दैनिक का एडिटोरियल पूरा ब्लैंक था और ब्लैक करके उन्होंने विरोध किया था इमरजेंसी का। और उसके बाद तो गुजरात में बहुत से लोगों को, जैसे मिसावासी गए, बाकी के बहुत से RSS से लेके यहाँ के ओल्ड कांग्रेस उस समय की, उनके लोगों का जेल में जाना हुआ। यहाँ सर्वोदयवादी भी ज़्यादा थे। शुरुआत में जब मोर्चा सरकार थी बाबू भाई जसभाई पटेल की, इनके कारण यहाँ थोड़ी इमरजेंसी लाइट थी, कम थी, और थोड़ी राहत थी। थोड़ी जेल में तो चले गए थे, बाकी के बाहर थे, भूगर्भ प्रवृत्ति करते थे, भूमिगत थे। और मैं RSS का स्वयंसेवक वहाँ शाखा लगाता था कॉलेज के हॉस्टल के आगे के ग्राउंड में, और इनके कारण मेरा हॉस्टल का रूम ऐसी भूमिगत प्रवृत्ति का सेंटर बन गया।
जितने भी हमारे आरएसएस के प्रचारक थे, बाकी के भूगर्भ में कार्यकर्ता, इंक्लूडिंग अपने नरेंद्र भाई मोदी जी भी, तो वहाँ रात को आना जाना, वहाँ साहित्य रखना। उस समय बहुत से पेपर, सत्याग्रह समाचार, जनता, छापू, ऐसे बहुत से पेपर निकलते थे, अपने साधना का निकलता था। तो ऐसे पेपर वहाँ आए जत्थाबंद, वहाँ से पूरे गुजरात में डिस्ट्रीब्यूट करना। एक स्टूडेंट के नाते मुझे जिम्मेदारी उस समय दी गई थी। हॉस्टल का रूम था, इसलिए पता चलेगा कि भाई यहाँ कोई नहीं आएगा। लेकिन एक बार मुझे याद है कि पता चल गया सीआईडी वालों को, बाकी को, पुलिस को। तो उस समय मेरी जो हॉस्टल की कैंटीन थी, कैंटीन का जो कॉन्ट्रैक्टर था वो वैसे साम्यवादी था। उनको पता था कि मैं आरएसएस वाला भी हूँ, लेकिन वो मुझे बार बार मार्क्स की, लेनिन की, माओ की बुक दिया करता था कि ये भी पढ़ो, तुम जो काम कर रहे हो सेवा का, वैसे हम भी मार्क्सवादी कोई कम नहीं है। उसने मुझे बचा लिया एक दिन रात को कि आज तुम्हारे यहाँ हॉस्टल में कोई आने वाले हैं, तुम यहाँ से निकल जा। तो 2-3 दिन के अंदर मैं निकल गया था, इसलिए मुझे जेल में तो नहीं जाना हुआ। इमरजेंसी के बीच में गुजरात सरकार को पदभ्रष्ट कर दिया और रियल में राष्ट्रपति शासन आया। और बाद में जो दिक्कत हुई, बाद में जो कड़काई से, सख्ताई से यहाँ इमरजेंसी लगी थी, उस समय के दिन भयावह थे। बहुत परेशानी थी, बहुत चिंता थी। मेरे बहुत से ऐसे परिचित फैमिली जिनको हम कहीं ना कहीं उनके फैमिली के लिए हर महीने थोड़ा कोई ना कोई उनको पैसा देने की मदद करना, उनके पास उनके घर पे अनाज पहुंचाना, उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पैसा, फी भरना, ये काम भी, जिम्मेवारी भी हमें कभी कभी दी जाती थी। आने वाले दिनों में हमारा लोकतंत्र बचे, और मेघ निर्घोष तो एक मीडिया के रूप में एक हमारा चौथा स्तंभ है मीडिया, एक स्तंभ है जुडिशरी, और उस समय जुडिशरी ने बहुत अच्छा काम किया। तीसरा है ब्यूरोक्रेसी और चौथा पॉलिटिशियन यानी कि पदाधिकारी। देखते हैं आज भी ये चारों स्तंभ को मजबूत रखने के लिए और अपने देश की लोकतंत्र अपना देश का कैसे मजबूत रहे, और इसी अवस्था में न राजाशाही न तानाशाही की बात भी हमने, जया जी ने बात करी, ये सब फिर से अपने देश में न आए। इसलिए हमारे यहाँ जो नई पीढ़ी बैठी है उन सबको एक प्रण लेना पड़ेगा, प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि इन सब की जो तपस्या है उनके लिए भी अपने देश का लोकतंत्र बचा रहे, इसके लिए हमें काम करना होगा। इसके लिए हमारा समय का और अपने पूरा योगदान देना पड़ेगा। एक बात यह है। दूसरी, इस समय के विलन की बात भी हमें याद है कि बरुआ ने कहा था ना कि इंदिरा इज इंडिया एंड इंडिया इज इंदिरा। वहाँ से लेकर के सिद्धार्थ शंकर रे हो, फिर अपने चंद्रजीत यादव, पीसी सेठी, और उसके आगे देवराज और बहुगुणा, ये सब ऐसे लोग थे कि जो पूरे इंदिरामयी थे, और ये सब विलन थे। इवन बरुआ कहा ना मैंने, और हाँ, और संजय गांधी तो था ही। लेकिन इन सब विलन के बावजूद भी जब कोई भी देश का अच्छा होने वाला होगा, उस समय हम तो इतने एक साइड में डरते थे, एक साइड में उत्साह था काम करने का। तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने अचानक इलेक्शन घोषित कर दिया। घोषित करने के पहले 5-10 दिन तो सबको डर ये था कि ये तो फिर से इंदिरा गांधी आ जाएगी और फिर से इमरजेंसी की कड़काई से काम करके सबको जेल में बंद कर देगी। लेकिन धीमे धीमे जो वातावरण पलटता गया, जनता मोर्चा बनता गया, और एक पूरे देश में जो माहौल बना, और मुझे इलेक्शन का दिन याद है, उस समय टाइम्स ऑफ इंडिया राजसम रोड पर और भद्र के किले के सामने, ये जो आज अपना बाजार है, उनके सामने बड़ा एक स्क्रीन रखा था, और उस स्क्रीन में जो रिजल्ट आते रहते थे उनके सामने लगभग 50,000 से लाख लोगों की मेदनी, पूरी रात हम जगे थे। और जब उन्हें पता चला कि इंदिरा गांधी 55,000 वोटों से हार गई, और उस समय का जो माहौल था, मैं मानता हूं कि उस समय मैं सेकंड MBBS में था, लेकिन तब हमें शांति हुई कि हाँ, अब हमें कोई चिंता नहीं है, कम से कम इंदिरा गांधी और संजय गांधी हार गए हैं, तो अब सरकार तो उनकी नहीं बनेगी। और बाद में एक अच्छा उन्होंने, इंदिरा गांधी ने स्टेप अच्छा भी लिया कि तुरंत दूसरे दिन इमरजेंसी उठा ली और अपने देश में फिर से लोकतंत्र की स्थापना हुई। मोरारजी देसाई फिर से अपने प्रधानमंत्री बने, और अब ये समय आया है कि अपना देश का सही इतिहास भी लिखा जाए, और इसमें ये इमरजेंसी का एक चैप्टर
अच्छी तरह से लोगों के सामने, अपनी नई पीढ़ी के सामने रखा जाएगा, तो सही मायने में मेघ घोष ने जो एक अच्छा प्रयास किया है अपने देश युवाओं के लिए कि कैसे आने वाले दिनों में इनका डॉक्यूमेंटेशन अच्छा हो, डॉक्यूमेंटेशन के साथ साथ अगली पीढ़ी को एक प्रेरणा मिले, इसके लिए आपने जो आयोजन किया इस कार्यक्रम का, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको मेरी बधाई, और फिर से आप सब हमारे मिसावासी बंधुओं को मेरा सादर वंदन। धन्यवाद। इमरजेंसी के अंदर हुए सारी एट्रोसिटीज, चाहे वो तुर्कमान मैसेकर हो, चाहे नसबंदी हो, चाहे वो जिस तरीके की भी एट्रोसिटी उस टाइम पे हुई थी, वो ये पूरी फिल्म रिफ्लेक्ट करती है। बट ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है, ये एक फीचर फिल्म बनाई है हमने, तो एक ह्यूमन ड्रामा है। लेकिन हमारी पूरी कोशिश यही है कि वो सारी दुनिया को हम अपने सेलुलाइड में कैप्चर करें और आपके सामने लाएं, क्योंकि ये वो चैप्टर था जो कहीं मिलता ही नहीं था। हमने बहुत सारी रिसर्च करने की जब कोशिश शुरू की, तो अगर आप गूगल पे जाएं या तुर्कमान मैसेकर के बारे में अगर आप टाइप भी करें तो शायद ही एक फोटोग्राफ आपके सामने आएगी। लेकिन आई एम वेरी थैंकफुल कि उस पूरी जर्नी में मुझे सूर्य प्रकाश जी मिले, माखनलाल जी मिले, सुब्रमण्यम स्वामी जी मिले, और बहुत सारे ऐसे लोग मिले जिन्होंने हमें बहुत ही सही दिशा दिखाई, और बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने अनफोल्ड हुई, किताबों के माध्यम से, जर्नलिस्ट के माध्यम से, बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आई। उसकी वजह से आज इंदु सरकार हम ये फिल्म बना पाए हैं और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बना पाए हैं। हमने किसी को भी हीरो विलेन बनाने की कोशिश नहीं की है, हमने सिर्फ सच्चाई दिखाई है जो हमें शाह कमीशन से मालूम चली और बहुत सारी और वेरियस सोर्सेज से मालूम चली। वो चैप्टर है जहां पे इंडिया पहली बार फैसिज्म के फेस टू फेस आया था, और ये आइंदा कभी ऐसा होना नहीं चाहिए। आई होप इसके माध्यम से हमारी जो यंगर जनरेशन है वो इसके बारे में जानेगी, उसके बारे में बात करेगी, ये कोर्स ऑफ डिस्कशन में आएगा, और वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। इस फिल्म का ये एक बहुत बड़ा उद्देश्य है कि इमरजेंसी कोर्स ऑफ डिस्कशन में आ जाए, क्योंकि कई सारे लोगों से जब यंगस्टर्स खास करके हमसे पूछते थे कि क्या फिल्म बना रहे हो, और हम उसको इमरजेंसी बोलते थे, तो उनका पहला शब्द होता था इमरजेंसी रूम, बिकॉज एक बहुत ही फेमस टीवी शो है, ये सब है, तो उनको इमरजेंसी के बारे में मालूम ही नहीं था, वो उनको इमरजेंसी रूम लगता था। लेकिन अब जिस तरीके से ट्रेलर आया, लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, धीरे धीरे लोग अवगत होंगे इस केस के बारे में, जानेंगे। एक खतरा हमने झेला इमरजेंसी के समय, एक खतरा हमने ओवरकम किया इमरजेंसी के समय। जो हमारे बड़े जो दिलेर लोग थे उस वक्त, सुब्रमण्यम स्वामी जैसे डॉक्टर साहब, यहां जो हमारे बैठे हैं बुजुर्ग, जिन्होंने उस वक्त एक अभियान चलाया अपने प्रजातंत्र को बचाने के लिए। मैं कह रहा हूं आज आपको, यू शुड लुक इनटू द फ्यूचर, फाइट इन द फ्यूचर, नॉट इन द पास्ट। कि मेघ निर्घोष जैसे मेहुल जी आपके नेतृत्व में जिस तरह के संस्था आप खड़ा कर रहे हैं, ऐसी जो नई संस्थाएं आ रही है, ये भारत के जनता को भारत के आवाज, भारत के गली गलियारों की, भारत के गांवों की, भारत के जरूरत के, भारत के आकांक्षाओं की आवाज को आप बुलंद करेंगे। ये नहीं कि पश्चिम क्या चाहता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस एक्टिविज्म से हटकर वापस पत्रकारिता में आए। मैं अपनी बात को, क्योंकि हम सब जो वैलिडिक्टरी सेशन है उसका इंतजार कर रहे हैं, आपातकाल के समय पर को याद करते हुए माननीय श्री लाल कृष्ण आडवाणी जी ने कहा था, When they were asked to bend, they crawled. आपको झुकने के लिए, घुटना टेकने के लिए कहा गया था, आप तो जमीन पर रेंगने लगे। सशक्त लोकतंत्र के लिए जागरूक मतदाता की जरूरत है। उसी तरीके से एक सशक्त और सक्रिय मीडिया के लिए जागरूक पाठक और जागरूक दर्शक की जरूरत है, और आपको वो जागरूक दर्शक बनना पड़ेगा, जागरूक पाठक बनना पड़ेगा, और आपको बताना होगा कि नहीं, ये हमें मान्य नहीं है कि आप कुछ भी हमें दिखा दें, कुछ भी लिख दें, उसको हम मंजूर कर दें। समय आ गया है एक वैकल्पिक मीडिया का, और मुझे उम्मीद है कि मेघ निर्घोष जो है आज के इस बहुत बड़े कार्यक्रम के साथ एक नया दिशा और दशा मीडिया के क्षेत्र में जो है खड़ा करेगी। इस विश्वास के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।